By superposition of wave, we will mean reaching two or more wave traveling simultaneously and independently. Two waves, like there are two sources S1, S2, and they are emitting waves given by y1 is equal to a1 sin omega t minus kx and y2 is equal to a2 sin omega t minus kx plus phi. These two sources, they are emitting waves continuously, and these two waves are reaching the point P at the same time. And looking at these two equations, you can very well judge what type of waves are reaching at the point P at the same time. The waves are having same frequency, omega is same for both the waves, k is same for both the waves. That means such waves which are being represented by these two equations, they are having same frequency, number one, same wavelength, number two, they are traveling in the same direction. Both are traveling along positive x direction. Number four, they are not having the same phase. There is a phase difference. The phase of this wave is omega t minus kx, and phase of second wave is omega t minus kx plus phi. Phi is the phase difference between these two waves. When two or more waves traveling simultaneously and independently, they reach at a point in the space at the same time, then these waves will cause redistribution of energy. Wave itself is energy. जब दो एनर्जी आ गई एक पार्टिकल के पास at the same time, then there will be redistribution of energy. And this redistribution of energy will be strictly according to the law of conservation of energy. Okay? And there will be modification in the redistribution of energy, and this energy distribution will be according to law of conservation of energy. And then what will happen? When two waves reach at a point in the space at the same time, new wave will be formed. दो वेव से एक नई वेव बन जाए, दो एनर्जी आ गई, वो ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो क्या करती हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वेव आई, वेव इज ए मैसेज, ओके, एमिटेड बाय दिस. इस सोर्स ने क्या कहा इस वेव को कि जाओ एक्स डिस्टेंस पर, एक पार्टिकल बैठा है, ये उसका नाम है, वहां जाने में तुम्हें टी टाइम लगेगा, ओमेगा बाय के तुम्हारी स्पीड होगी. ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है. You have studied simple harmonic progressive wave traveling along positive x direction. Okay, so this wave given by this equation is being interpreted as a source is emitting wave continuously and wave is moving along a positive x direction with a speed omega by k, and wave has taken t time to cover x distance. This point of observation P is located at a distance x from the starting point, and this wave is making this particle located at P vibrate simple harmonically. You know what happens during wave motion? Every particle on receiving energy will start executing simple harmonic motion. तो ये इसके लिए मैसेज आ गया P पॉइंट के लिए कि तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करना है और एनर्जी को आगे भेजना है. क्या टाइम पीरियड होगा इसका, वो यहाँ से पता लगेगा. क्या वेवलेंथ होगी, के से पता लगेगा. किस डायरेक्शन में इसको वेव भेजना है, एक्स से पता लगेगा. किस स्पीड से इसको वेव को आगे भेजना है, ओमेगा बाय के से पता लगेगा. तो उसको टी टाइम में अपनी मीन पोजीशन से कितनी दूर जाना है, y1. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट of the particle of the medium which is taking part in the wave propagation. ये जो मैसेज यहाँ आया, मैसेज मीन्स एनर्जी जब यहाँ आई तो इसने कहा कि मुझे सोर्स S1 ने भेजा है पार्टिकल के वेव तुम जाओ एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, पार्टिकल होगा, वहाँ मेरा ये मैसेज दे दो कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करे और वो टी टाइम में अपनी मीन पोजीशन से y1 दूर जाए, मैक्सिमम अपनी मेन पोजीशन से वो A1 दूर जाए और एनर्जी जैसे रिसीव करे उसको आगे पास ऑन कर दे.
तो जब पार्टिकल को ये मैसेज मिला इन द फॉर्म ऑफ दिस वेव, वो लगा है इसका कहना मान के सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जिट करने में लगा, तो इमीडिएटली उसी वक्त एक दूसरी वेव आ गई। तो पार्टिकल हेलो, मुझे एक सोर्स ने भेजा है स्टूडेंट, तुम्हारे लिए एक मैसेज है। बोले क्या मैसेज है? कि तुम्हें सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करना है, तुम्हारा टाइम पीरियड यहाँ पता है, लिखा हुआ है, वेवलेंथ तुम्हारी ये है, डायरेक्शन तुम्हारी ये है, मैं एक्स डिस्टेंस से आई हूँ, मुझे t1 टाइम लगा है, और मुझे सोर्स ने कहा था कि वहाँ पार्टिकल को ये मैसेज दे दो कि वो SHM में वाइब्रेट करे, t टाइम में मीन पोजीशन से y2 डिस्टेंस दूर जाए, मैक्सिमम इतनी दूर जाए। वो पार्टिकल कहता अभी अभी तो एक मैसेज आया था, सोर्स S1 ने भेजा था, अब ये सेकंड मैसेज आ गया सेम टाइम पे, नो पार्टिकल इज इन ट्रबल। पार्टिकल में क्या करूं? वो कहते हैं ऐसे करो, इतनी दूर जाओ टी टाइम में, ये कहता है टी टाइम में इतनी दूर जाओ, वो कहता है मैक्सिमम इतनी दूर जाओ, वो कहता है एम्पलीट्यूड ये होनी चाहिए। ओके, तो पार्टिकल कहता मैं क्या करूं? पार्टिकल परेशान हो गया, मैं किसका कहना मानूं? अगर वो इस वेव का कहना मानता है, टी टाइम में इतनी दूर जाता है, मैक्सिमम इतनी दूर जाता है, टाइम पीरियड्स का यहाँ है, वेवलेंथ यहाँ है, ओके, तो ये फिर उसको कहेगी मेरा क्यों नहीं कहना माना? दो वेव का एक ही पॉइंट पर पहुंचना, जब ये वेव्स आ रही थी दे वर ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली। व्हाट डू मीन बाय दिस? कि एक वेव का दूसरे को पता नहीं था कि वो भी आ रही है। जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं, एक ही क्लास के बच्चे मान लो डिफरेंट जगह से आते हैं, डिफरेंट उनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिफरेंट उनके स्टार्टिंग टाइम होते हैं, लेकिन वो एकदम एक ही टाइम पे स्कूल पे पहुंच जाते हैं। तुम कब आया? बोला मैं भी अभी आया। ये इसको सुपरपोजिशन कहते हैं, दो बंदों का एक ही जगह एक ही टाइम पर पहुंचना। ओके, और वो एक दूसरे को जानते नहीं कि वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आज वो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या सुपरपोजिशन है? द फिनोमेना in which two or more waves traveling simultaneously and independently reach at a point in the space at the same time, causing modification in the redistribution of energy according to law of conservation of energy। जो कुछ भी होगा law of conservation of energy के अकॉर्डिंग होगा। तो वेव मीन्स एनर्जी, दो एनर्जी आ गई एक ही पॉइंट पर, और वेव मोशन में जब एनर्जी आती है तो क्या क्या होता है? पार्टिकल का मैसेज है कि तुमने SHM में वाइब्रेट करना है, जो एनर्जी आई है उसको आगे हैंड ओवर करना, तुम्हें वेव मोशन में हिस्सा लेना। तो दो मैसेज आ गए एक ही टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बंदा पंचकूला से आया, एक दिल्ली से आया, किसी के घर में फंक्शन है, पंचकूला से आया, उसने कहा कि यार दिल्ली में कर्फ्यू लग गया। जो बंदा दिल्ली से आया वो कहता नहीं मैं दिल्ली से आया, कर्फ्यू लगा था, हट गया। दो मैसेज आ गए एक ही बंदे को, जिस घर में फंक्शन है उसको दो मैसेज एक टाइम पर मिले। एक पंचकूला से आया, अब उसका पार्ट डिफरेंस देख लो कितना है, पंचकूला से यहाँ कितना डिस्टेंस है, और एक दिल्ली से आया, दोनों सेम टाइम पे नहीं चले होंगे, दोनों ने सेम डिस्टेंस नहीं कवर किया होगा। ओके, तो लेकिन एक ही घर में एक ही टाइम पर पहुंच गए। एक ने कहा कर्फ्यू लग गया, एक कहता नहीं लगा था, हट गया। जिसको ये दो मैसेज मिले सेम टाइम पर, वो सोचेगा मैं इसका कहना मानूं, ये तो कहता भी कर्फ्यू लगा है, तो इसका मतलब मेरे तो दिल्ली से इतने मेहमान आने थे वो तो आएंगे नहीं क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो दिल्ली से आया कहता नहीं कर्फ्यू लगा था, हट गया, तो मैं इसका कहना मानूं कि इसका कहना। हाँ, अगर ये अकेला आता और मुझे जो कहता मैं मान लेता, लेकिन उसी टाइम दूसरा मैसेज आ गया, एक मैसेज को दूसरे ने कंट्राडिक्ट कर दिया, तो लगा कहता नहीं लगा, हट गया। ये ऐसी जो सुपरपोजिशन है जिसमें एक मैसेज दूसरे का उल्टा है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। हाँ, एक ने कहा लग गया, दूसरे ने कहा हाँ लग गया, बात पक्की हो गई। दो बंदों ने एक ही बंदे को सेम मैसेज दिया सेम टाइम पर, तो वो मैसेज पक्का हो गया। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, तो यहाँ जो सुपरपोजिशन का मीनिंग ये है कि टू आर मोर वेव्स, ये तो दो ही वेव है, दो से ज्यादा वेव भी एट ए टाइम एक ही पॉइंट पर पहुंच सकती है। एंड व्हेन यू से दीस टू वेव्स आर ट्रैवलिंग इंडिपेंडेंटली,
That means they are each are not knowing the other is also coming. Number one. Number two, they are traveling simultaneously. वो भी आ रहा है, वो भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, और इंडिपेंडेंट आ रही है. इसको इसका नहीं पता, इसको इसका नहीं पता. And they reach at a point in the space at the same time. अब कैसी वेव आई है ये आपको डाटा दिया है. इससे ही पता लगता है कि उनकी एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, उनकी वेवलेंथ सेम है, उनकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सेम है, लेकिन उनकी फेज सेम नहीं है. इसका फेज ये है, इसका फेज ये है. जैसे जो पंचकुला से आधा घंटा पहले चला होगा, पास ही तो है 15 किलोमीटर, लेकिन जो दिल्ली से चला होगा 350 किलोमीटर, वो तो बहुत अर्ली चला होगा, तो ज़्यादा टाइम लगना. वो 4 घंटे पहले चला होगा तब पहुंचा, ये आधा घंटा पहले चला होगा तब पहुंचा. और दोनों डिफरेंट स्टेशन से आ रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं. ओके, लेकिन एक ही टाइम पर एक ही बंदे को मैसेज दे रहे हैं, सेम मैसेज दे रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है. और एक ने मैसेज जो दिया दूसरे ने उसको काट दिया, ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है. तो यहाँ सुपरपोजिशन 2 टाइप की होगी, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव. ओके, क्या हुआ, ये वेव क्या है, मैसेज आया इसके लिए. मैसेज क्या है, वेव ने बोला मुझे सोर्स S1 ने भेजा है, ये कह के कि जाओ अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एक्स डिस्टेंस पे एक पार्टिकल बैठा होगा, उसको ये मैसेज दे दो कि वो मैसेज मिलता ही सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करने लगे. अपने टी टाइम में वो अपनी मीन पोजीशन से इतनी दूर जाए, मैक्सिमम इतनी दूर जाए, एक चक्कर काटने के लिए टाइम कितना लगे वो ये बताए, और इतने टाइम में वेव कितनी दूर इसने भेजनी है वो ये बताए. 2π/λ ना ये 2π/t है. टाइम पीरियड यहाँ बैठा है, वेवलेंथ यहाँ बैठी है, डायरेक्शन यहाँ बैठी है. तो जब ये पार्टिकल को ये मैसेज मिला और ये इसके मैसेज को लेकर लगा वाइब्रेट करने, सेम टाइम पर दूसरी वेव ने कहा भी मुझे भी सोर्स S2 ने भेजा, मैं भी एक्स डिस्टेंस से आई हूँ, और मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज है कि तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेट करो, टी टाइम में अपनी मेन पोजीशन से इतनी दूर जाना, मैक्सिमम इतनी दूर जाना, एक चक्कर काटने में कितना टाइम इससे पूछना, और अपने टाइम में वेव कितनी दूर भेजनी है इससे पूछना. ओके, तो वो पार्टिकल कहता है यार दोनों मैसेज सेम टाइम पर आए, मैं किसका कहना मानूं. पार्टिकल परेशान था, सुपरेशन हो चुका है, तो वो वेव एक ही टाइम पर एक ही पार्टिकल को मिल चुकी है, और दोनों पार्टिकल को वाइब्रेट कराने के लिए मैसेज लेकर आई हैं. ओके, लेकिन पार्टिकल एट ए टाइम 2 मैसेज का को ओबे कैसे करें. ओके, तो उधर जा रहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. उसने देखा पार्टिकल मीडियम का बड़ा परेशान है. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने कहा कि व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई यू आर इन ट्रबल. कहते 2 वेव आ गई हैं, वो अलग अलग बातें कर रही हैं, मुझे परेशान कर रही हैं, किसका कहना माने. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने ये कहा कि एक का कहना मत मानना, दूसरा तुम्हारा सिर फोड़ देगी. मेरा क्यों नहीं कहना माना, अभी सेम टाइम पर आई हूँ, मुझे भी सोर्स ने भेजा है, मेरा कहना मानो. और नहीं, तुम मेरा कहना मानो. ठीक है, पार्टिकल को कहा गया अगर एक वेव का कहना माना, दूसरा का नहीं कहना माना, तो हमारा सिर फोड़ दे. फिर क्या करूं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने कहा इन वेव को बोलो अपना रिजल्टेंट निकाले. वो प्रिंसिपल सुपरपोजिशन कह के चला गया, तो पार्टिकल कहता दोनों वेव्स को भी अपना रिजल्टेंट निकालो. मैं तो रिजल्टेंट का कहना मानूंगा. बोला हमें तो सोर्स ने भेजा था, हमें नहीं रिजल्टेंट निकालना आता. कहता फिर पेल्ट्रन लॉ वेक्टर को जानते हो. कहते हाँ नाम तो सुना है, उसको फोन कर, वो रिजल्टेंट निकाल देगा. और रिजल्टेंट का कहना मानना, एक एक का कहना नहीं मानना. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे का बर्थडे है, और वो एक को कहता जाओ यार समोसे लेकर आओ. वो कहता अच्छा वो फलानी दुकान से लेके आता हूँ, वो बड़े अच्छे समोसे बनाता है. दूसरा बोला नहीं नहीं मैंने कल फलानी दुकान से खाए थे, वो बहुत बढ़िया बनाता, वहाँ से लेकर आओ. और जिसने समोसे लेने जाना है उसको एक कह रहा वहाँ से लेकर आओ, दूसरा कह रहा नहीं उधर से लेकर आओ. तो बताओ वो क्या करेगा. वो सबसे पूछेगा यार मुझे तुम बताओ कहाँ से लेके आने, रिजल्टेंट निकालो. ठीक है ना, फैसला करो मुझे कहाँ से लेके आने, और जो फैसला होगा दैट इज द रिजल्टेंट. ओके, फिर वो इमीडिएटली भागेगा और वहाँ से लेकर आएगा. तो यहाँ
superposition है. Superposition means two or more waves, they are reaching at a point in the space at the same time. They are causing modification in the redistribution of energy. A new wave is formed. New wave is formed. Okay. Or according to principle of superposition, new wave will be formed and the displacement of the new wave will be equal to vector sum of the displacement of individual wave. प्रिंसिपल सुपरपोजिशन बोला पार्टिकल दो वेव आ गए, तुम घबरा गए, 2 लाख वेव भी एक टाइम पर आ जाए, घबराना नहीं. उनको कहना अपना रिजल्टेंट निकालो और रिजल्टेंट का कहना मानना. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपर, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, when two or more waves reach at a point in the space at the same time, they will cause modification in the redistribution of energy. According to law of conservation of energy, new wave will be formed, and the displacement of the new wave will be equal to the vector sum. Vector sum के लिए तो पैराग्राम लॉ वेक्टर को याद किया. New wave will be formed. Displacement new wave will be equal to the vector sum of the displacement of the individual wave. चाहे वो 2 वेव आए, चाहे 2 करोड़ वेव की टाइम पर पहुंच जाए. तो ये जो मैंने लिखा है, दिस इज बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? When 2 or more waves they reach at a point in the space at the same time, causing modification in the redistribution of energy, according to law of conservation of energy, new wave will be found. And the displacement of the new wave will be equal to the vector sum. Vector sum of the displacement of the 2 superimposing wave. जो वेव एक ही टाइम पर पहुंची है, ओके, उनके डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम लिया जाएगा, वो नई वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट न्यू वेव इज इक्वल टू वेक्टर सम. ओके, तो इनका वेक्टर सम निकाल लेंगे. अब ये जो सुपरपोजिशन है, इसमें देयर आर 3 डिफरेंट केसेस. ये जो वेव एक पॉइंट पर पहुंची है, सेम टाइम पर पहुंची है, वो कैसी है? क्या वो ऐसी है? दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, they are having same frequency, same wavelength, traveling in the same direction, reach at the same point at the same time. Then according to principle of superposition, new wave given by this. Okay, this is called a special case of superposition. इसको बोलते हैं interference. और अगर यही वेव opposite direction से आती, identical wave होती है. Identical wave means amplitude भी same, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी सेम, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी भी सेम, वेवलेंथ भी सेम, और पॉइंट भी सेम, और वहां पहुंचने का टाइम भी सेम. ओके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन सेम है, तो हम कहेंगे ये सुपरपोजिशन है. सुपरपोजिशन का कौन सा केस है? देयर आर 3 डिफरेंट केसेस ऑफ सुपरपोजिशन. एक है इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस में क्या रिक्वायरमेंट है? आपने लिखा, लिखो इंटरफेरेंस. इट इज ए स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन. इट इज ए स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स in which 2 or more identical waves, 2 or more identical waves, identical wave ब्रैकेट में लिख लो, कैसे पता लगेगा वेव्स आइडेंटिकल है? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, और सेम क्या लिखा है? Same frequency, same amplitude. हाँ, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम वेवलेंथ. Traveling simultaneously and independently. Traveling simultaneously and independently reach at a point
in the space at the same time while traveling in the same direction. Interference is a special case of superposition. Here you require two identical waves. They must travel in the same direction. Okay, they must travel simultaneously, independently, and they must reach at the same point at the same time. Okay, then there will be modification in the redistribution of energy and new wave will be found. Okay, and the displacement new wave will be equal to the vector sum of the displacement of individual wave. Okay, number two, standing wave. Standing wave. It is a special case of superposition. Standing wave. It is a special case of superposition in which two identical waves traveling simultaneously and independently coming from opposite direction reach at a point in the space at the same time causing modification in the redistribution of energy resulting in the formation of node and antinode. Such waves are required for formation of standing wave. Standing wave is also a case of superposition of wave. In this case, two identical wave. Identical wave means the same amplitude, same frequency, same wavelength, but traveling from opposite direction. If such wave reach at a point in the space at the same time, causing modification in the redistribution of energy, then the result will be formation of node and antinode. What are nodes and antinodes? And why we say it is a standing wave? Standing wave या स्टेशनरी वेव भी इसको कहते हैं. इसमें एनर्जी प्रोग्रेस नहीं करेगी. ओके, एनर्जी आगे नहीं जाएगी. एनर्जी विल बी रिस्ट्रिक्टेड इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द मीडियम. दैट वे पॉइंट. और उसमें नोड एंटी नोड का क्या मतलब है? नोड इज ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द मीडियम वेयर प्रेशर विल बी मैक्सिमम, displacement will be zero, a particle will not be free to vibrate. अब देखते हैं इलेक्ट्रिक गिटार में जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग के दोनों एंड पे टाइट कर देते हैं स्क्रू से. डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होती है. वहाँ जो वायर का पार्ट है जो स्क्रू से अटैच है, वहाँ वायर इज नॉट अलाउड टू ऑसिलेट. जो बीच वाली स्ट्रिंग है
दैट इज फ्री टू ऑसिलेट, उसको प्लग करते हैं ना, ठीक है। अच्छा जुड़ के रस्सा डालती है ऐसे, तो रस्सी के जो दो किनारे आपने हाथ में पकड़ लिए, ठीक है ना, ये नोट बन गए। यहाँ प्रेशर इतना ज़्यादा कर दिया, जोर से पकड़ा, फिर आप स्किपिंग करते हैं, ठीक है ना, रस्सा ऐसे फिर पैर के नीचे जाता था, आप उठाते हैं, ओके, फिर दोबारा रस्सा आता है, फिर उठाते हैं। तो रस्से के जो कॉर्नर आपने पकड़ रखे हैं वो लोड है, ओके, वहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ का पार्टिकल विल नॉट बी फ्री टू ऑसिलेट। लेकिन बीच में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी, पार्टिकल विल बी फ्री टू वाइब्रेट। अगर वो रस्सी की शेप देखें, जब सिर के ऊपर जाता है तो ऐसे होता है, पैर के नीचे आता है तो ऐसे होता है, ओके। जो पोर्शन आपने हाथ में पकड़ रखा है वो नोड है, लेकिन बीच में जो स्टिंग है इस फ्री टू ऑसिलेट, वहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। एनर्जी जो है वो जो स्टिंग है इलेक्ट्रिक गिटार की, उसके बीच में एनर्जी इधर ऑसिलेट करेगी, इधर ऑसिलेट करेगी, जहाँ आपने प्रेशर इतना ज़्यादा कर रखा है वहाँ एनर्जी जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, आगे नहीं जा सकती, एनर्जी का प्रोग्रेशन नहीं होगा। तभी नाम रखा गया स्टैंडिंग वेव। एनर्जी विल गेट रिस्ट्रिक्टेड इन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द मीडियम, ये इसका ट्रांसमिशन आगे नहीं होगा, ओके। तो एक सेगमेंट होगा, सेगमेंट के ये जो किनारे ये नोड होंगे, बीच में एंटी नोड होगा, यहाँ प्रेशर मिनिमम होगा, पार्टिकल इज फ्री टू ऑसिलेट, ओके। लेकिन कॉर्नर पे नोड बनेगा, नोड इज ए स्पेशल पॉइंट ऑफ द मीडियम वेयर प्रेशर इज मैक्सिमम, पार्टिकल इज नॉट फ्री टू वाइब्रेट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, इसको हम नोड बोलेंगे। तो whenever this type of waves, they are identical wave, one is going along positive x direction and other is going towards negative x direction, ये आपको बताया था। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन along x एक्सिस है, यहाँ प्लस है तो मीन नेगेटिव x एक्सिस है, इधर माइनस है तो मीन पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रही है। दोनों वेव्स आइडेंटिकल है, दोनों ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली, नॉट नोइंग कि अदर इज आल्सो कमिंग, and they reach at a point in the space at the same time. Then what's the result? According to principle of superposition, new wave will be found, and the displacement new wave will be vector sum of the displacement of individual wave. But what is the final result? Node and antinode. So what are nodes and antinodes? Node is that part of the medium where pressure is maximum. Particle is not free to oscillate. Displacement is zero. And antinode is that part of the medium where pressure is minimum, displacement is maximum, particle is free to oscillate. And these nodes and antinodes, they will be found alternatively. Node, then antinode, then again node, then again antinode, like this. Okay? And another definition of wavelength. The two nearest nodes will be separated by lambda by 2. ऐसे होगा। मान लीजिए स्टिंग लेते हैं, ये स्टिंग है, यहाँ से आप इसको फिक्स कर देते हैं, नोड बनाते हैं, इसको मेक इट टू ऑसिलेट, तो ये इसकी शक्ल ये हो जाएगी, नोड नोड एंटी नोड, and distance, this distance is lambda by 2, and distance between node and antinode will be lambda by 4. Antinode will be found between two nodes. Okay? ये हाफ वेव है, नो फुल वेव ऐसे दिखाते हैं। मान लो ये वेव ऐसे जा रही थी, ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ यू हैड ए रिजिड पार्ट, the wave will get reflected, ये वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, ये इंसिडेंट वेव will get reflected from this boundary, ये बाउंड्री रिजिड है, हार्ड है, यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगी, ओके।
The same wave is being reflected by this rigid portion. ओके, तो ये डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और ये एक इधर से आ रही है, वही वेव रिफ्लेक्ट होकर इधर आ रही है, बहुत सारा आइडेंटिकल. Direction of propagation becomes of different. One will be moving in a direction opposite to the other. Reflected is moving in a direction opposite to the incident. So this is the requirement of formation of standing wave. And when standing wave is formed, the nodes and antinodes are formed. So we talk about nodes and antinodes only in case of standing wave. What is standing wave? It's a case of superposition. What happens in this? Two identical waves traveling from opposite direction. They reach at a point in the space at the same time. Okay? Then they cause modification in the redistribution. दो एनर्जी आ गई, उनका मॉडिफिकेशन होगा. वो ऐड होती है. ऐड कब होंगी? जब दोनों वेव पार्टिकल को एक ही बात बताएंगी. पार्टिकल एक वेव कहती है इधर ऑसिलेट करो, दूसरी कहती है हाँ इधर ही करो, तो फिर डिस्प्लेसमेंट डबल हो जाएगा. ओके, पार्टिकल ने दोनों का कहना माना, दोनों ने सेम बात करी, तो इसको बोलेंगे हम ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है. वहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगी. और जहाँ एक वेव ने कुछ कहा और दूसरी वेव जब वहाँ पहुंची तो उसने उस बात को काट दिया, एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया. एनर्जी डिस्ट्रक्शन नहीं होती, मतलब वहाँ एनर्जी भाग जाएगी. यहाँ जहाँ नोड बना है, जहाँ नोड बना है, यहाँ पार्टिकल ने दोनों वेव का कहना नहीं माना, तो वेव वहाँ से चली गई. थोड़ी बार सोर्सेज का फोन आएगा, भाई मैंने वेव भेजी थी, कहते हाँ आई थी. दूसरे सोर्स का फोन आ गया उसी पार्टिकल को, भी एक वेव आई थी मैंने भेजी थी, बोला हाँ आई थी, जरा बात कराओ. तो भाग गई यहाँ से. क्यों भाग गई? बोलो तूने उल्टी बातें कर रही थी, एक कहती थी ऐसे कर, दूसरी कहती थी ऐसे कर, मैंने नहीं दोनों का कहना माना. अब दोनों वेव को ये पता लग गया कि पार्टिकल नहीं माना कहना मानने वाला. फिर ऐसी जगह जाओ जहाँ पार्टिकल कहना माने, तो एनर्जी विल डिसअपीयर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड विल अपीयर एट दिस पॉइंट. और इधर हाफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग सुपरपोजिशन द मॉडिफिकेशन जो हो रही है in the redistribution of energy is according to the law of conservation of energy, which states energy can neither be created nor destroyed. जब दोनों सोर्सेज ने इस पार्टिकल को फोन किया, हमारी वेव आई थी, एनर्जी आई थी, कहाँ गई, बात कराओ, कहते दोनों यहाँ से भाग गई. दो आई थी, एक ही टाइम पर आई थी, उल्टी बातें कर रही थी, मैंने नहीं दोनों का कहना माना, भाग गई यहाँ से. कहाँ जाएंगे? यू कैन डिस्ट्रॉय, दे विल अपीयर एट सम अदर पॉइंट. दे आर इन सर्च ऑफ ए पॉइंट जो दोनों का कहना माने, और जो दोनों का कहना मानेगा वो एंटी नोड होगा, वह एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. सिंपल भाषा में आपको बता दिया. ठीक है. नंबर 1 की सुपरपोजिशन, आज का टॉपिक था सुपरपोजिशन. तो इसमें क्या हुआ? इट्स ए फिनोमिना इन विच 2 or more वेव्स, चाहे वो आइडेंटिकल है चाहे वो डिफरेंट है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जा रही, चाहे अपोजिट डायरेक्शन से आ रही, ठीक है ना, उनका एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर पहुंचना सुपरपोजिशन. The 2 or more waves traveling simultaneously and independently reach at a point in the space at the same time, causing modification in the redistribution of energy according to law of conservation of energy. So what will be the result? In case of standing wave formation, where requirement is the two waves should be identical, they should come from opposite direction, they should reach at the same point at the same time. Then according to principle of superposition, new wave will be formed, and the displacement new wave will be equal to the vector sum. And what is the final result? Formation of node and antinode. So what are nodes? These are those points of the medium where particles are not free to vibrate. Why they are not free to vibrate? The pressure is maximum. When they are not vibrating, they are not free to vibrate, displacement is zero. So such points of the medium are called the node, and where particles are free to oscillate, pressure is minimum, displacement is maximum, they are antinode. And these nodes and antinode, they are formed only when two waves which are identical and they are traveling simultaneously, independently, they are coming from opposite direction and reach at a point P at the same time.
causing modification in the redistribution of energy according to the law of conservation of energy. Then according to principle of superposition, new wave is formed. Displacement of new wave, vector sum of the displacement of superimposing wave, चाहे वो 2 है चाहे वो 2000 है. तो y1 plus y2 आगे में dash dash dash, यहाँ तो we have taken only 2 waves. It can be 2000s also. Got my point? अच्छा, third case of superposition. We will take these cases in full detail. I am just discussing the different ways of superposition. पहला था interference, identical waves were required, same direction, reach at the same point at the same time. वहाँ नोड एंटीनोड नहीं बनते जब डायरेक्शन सेम होती है. वहाँ कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरविजन होता है. ठीक है ना. अब थर्ड जो है, third case of superposition is beads formation. All these cases are of superposition of waves. So, what are the requirements for beads formation? First is, what is bead? Beat is rise or fall in the intensity of sound. Beats की फॉर्मेशन साउंड में होगी, लाइट में नहीं होगी. इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन जो पहला है वो लाइट में भी होगा, वो किसी भी वेव में हो सकता है, चाहे वो साउंड वेव है, मैकेनिकल वेव है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सुपरपोजिशन होगा. सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस जो पहला केस ऑफ सुपरपोजिशन है वो होगा. वेव्स चाहे मैकेनिकल वेव हो, चाहे लॉन्गिट्यूडल वेव हो, चाहे ट्रांसवर्स वेव हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो. ओके. लेकिन जो बीट्स फॉर्मेशन है, राइज और फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. बीट फॉर्मेशन विल टॉक अबाउट ओनली इन केस ऑफ साउंड वेव. बीट में क्या होता है, एकदम साउंड की लाउडनेस इंटेंसिटी बढ़ जाती है, एकदम घट जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है. जैसे मालिक आप नेशनल एंथम गा रहे हैं, जनरली क्या होगा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये ऐसे गाएंगे. लेकिन अगर बीट्स बन गई ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य, ये क्या होगा, राइज और फॉल इन द लाउडनेस, राइज और फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. अब ये क्या हो रहा है, बीट्स बन रही है, आवाज एकदम बढ़ जाएगी या एकदम घट जाएगी. तो राइज और फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज बीट. Got my point? Now how many times intensity will rise in 1 second? उसको बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. Number of times intensity rises per second or number of times intensity falls per second, that is beat frequency. तो बीट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, two waves given by y1 is equal to a sin and y2 a sin 2 pi and 2t. Such waves will result, these waves are not of the same frequency. बीट फॉर्मेशन की कोई डेफिनेशन नहीं. Okay? Waves having different frequency. Frequency same नहीं है, अच्छा, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन सेम है. बीट बोथ आर प्रोग्रेसिव वेव. इसमें तो स्टैंडिंग वेव में तो डायरेक्शन अपोजिट थी ना, इसमें डायरेक्शन सेम है, इसमें भी डायरेक्शन सेम है. ओके. तो डिटेल में लेंगे, अभी तो सिर्फ सरफेस पे आपको बताया जा रहा है कि बीट्स क्या है. ये तीनों सुपरविजन के केसेस हैं. जनरल डेफिनेशन ऑफ सुपरविजन आपको बताई है, टू और मोर वे दे रीच एट डिफाइंड द स्पेस एट द सेम टाइम. ओके. जो वेव्स जो इंडिपेंडेंटली जा रही थी, वेव पॉइंट पे एक ही टाइम पे पहुंच गई, वो कैसी थी, क्या वो आइडेंटिकल वेव थी, या दे वर वेव हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और दे वर वेव कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, और वेव गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, कैसी थी वेव.
और जब वो उन्होंने सुपर इम्पोज किया, सुपर इम्पोज मीन्स दे रीच एट ए पॉइंट इन द स्पेस एट द सेम टाइम। इसको हमने सम अप किया एक सिंगल वर्ड में, सुपरपोजिशन। फिनोमेना ऑफ रीचिंग टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंटली रीच एट ए पॉइंट इन द स्पेस एट द सेम टाइम। दो या दो से ज्यादा वेव का एक ही पॉइंट पर एक ही टाइम पर पहुंचना सुपरपोजिशन है। जब वो ऐसा सुपरपोजिशन होगा, तीन पॉसिबिलिटी है कि क्या वेव सेम डायरेक्शन में जा रही थी या अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, आइडेंटिकल थी, या they were having different frequencies. For beat formation, we require two waves having slight difference in their frequency. Many body use के slight difference. How much difference? इसको आप स्लाइड करें, थोड़ा सा डिफरेंस। कितना? The frequency difference must be less than or equal to 10. Why this restriction? आवाज का घटना और बढ़ना, इंटेंसिटी का एकदम राइज कर जाना, एकदम फॉल कर जाना, ये बीट है। और एक सेकंड में कितनी बार राइज किया या एक सेकंड में कितनी बार फॉल किया इंटेंसिटी ने, वो बीट फ्रीक्वेंसी है। जो बीट फ्रीक्वेंसी इसको एम से डिनोट करते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। एंड वी विल प्रूव व्हेन वी टेक अप बीट फॉर्मेशन इन डिटेल, the beat frequency noted by M is equal to difference in their frequencies. जितना वेव की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, उतनी बार एक सेकंड में इंटेंसिटी फॉल करेगी या राइज करेगी। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई? क्योंकि बीट्स में राइज और फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, और साउंड को सुनने के लिए क्या, कौन सा ऑर्गन है? ईयर। अब ईयर ने कहा देखो, अगर एक सेकंड में 10 से ज्यादा बार इंटेंसिटी बढ़ी तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा। और ईयर की इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। Persistence of hearing, property of human ear, because of which, if more than 10 times per second rise or fall of intensity of sound takes place, ear fails to differentiate. कान बोलेगा मैं 10 से ज़्यादा बार अगर आवाज़ बढ़ी या घटी मैं पहचान नहीं पाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम है। इसलिए हमने फिर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इसका नाम है कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए। उसका कारण हमने यहाँ से ढूंढा कि प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन ईयर है, इट कैन आइडेंटिफाई द राइज और फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इफ इट टेक्स प्लेस लेस देन और इक्वल टू 10 टाइम्स पर सेकेंड। If intensity of sound rises or falls more than 10 times per second, human ear will fail to detect this. So therefore, we have put a restriction on beats. If slight difference in frequency of the two waves, and that slight difference means difference should be less than or equal to 10. इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. Reason behind the property of human ear, that is a persistence of hearing. Property of human ear, because of which human ear can detect rise or fall in the intensity of sound if it takes place less than 10 times per second or equal to 10 times per second. And if this rise or fall in the intensity of sound is taking place more than 10 times per second, human ear will fail to detect. इसलिए हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि if you want to identify, you want to recognize कि राइज हो रहा है कि फॉल हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कौन बताएगा? ह्यूमन ईयर। इट इज द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाइट का केस नहीं है। बीट्स आर फाउंड इन साउंड वेव ओनली, ओके, एंड बीट इज ए स्पेशल केस ऑफ सुपरेशन ऑफ वेव।
Here two waves having slight difference in frequency, traveling in the same direction, independently and simultaneously. They reach at a point in the space at the same time. वो पॉइंट होगा हिमालयन, जिसने रिकॉग्नाइज करना क्या इंटेंसिटी बढ़ी है या घटी है, क्योंकि जो मीडियम का पार्टिकल है वो नहीं रिकॉग्नाइज करेगा, वो नहीं साउंड को सुन पाएगा. इस केस में जो ऑब्जर्वर होगा, जो पॉइंट होगा जहाँ सुप्रेशन हो रहा है, ऐसी वेव्स पहुंच रही हैं, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, डिफरेंस लेस देन 10 है, और रिजल्ट क्या है, राइज और फॉल इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. इसको कहते हैं बीट फॉर्मेशन. इंटेंसिटी का बढ़ना या घटना बीट है. लेकिन एक सेकंड में कितनी बार इंटेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, वो जितना फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा, तो उसको हमने बीट फ्रीक्वेंसी कह दिया और एम से डिनोट कर दिया. और ये सेक्शन लगा दी कि डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स विच आर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स शुड नॉट बी मोर देन 10. Got my point? So मैं वो तीनों को सम अप कर रहा हूँ, सुपरपोजिशन एंड देयर डिफरेंट केसेस एंड देयर रिक्वायरमेंट. सुपरपोजिशन, of wave. Three possibilities. Number one, interference. Requirement is we require wave which should be identical. Identical means it should have same frequency, same wavelength, and they should travel in the same direction. They should travel continuously, simultaneously and independently. And when such wave they reach at a point in the space at the same time, resulted is interference. Here there will be constructive or destructive interference. Constructive means the energy will get added up. According to principle of superposition, new wave is to be formed like this. Here the displacement new wave, this will be A1 sin omega t minus kx plus A2 sin omega t minus kx plus phi. Waves are, though they are identical means they have same frequency, same wavelength, traveling in the same direction. They may have almost same एम्पलीट्यूड, A1 A2 बराबर भी हो सकते हैं, तब तो बढ़िया इंटरफेरेंस होगा. ओके. और इंटरफेरेंस में अगर लाइट के केस में इंटरफेरेंस होता है तो फिर ब्राइट और डार्क पॉइंट्स बनते हैं. साउंड की वेव में इंटरफेरेंस होता है तो इंटेंसिटी बढ़ती है, नॉर्मल से ज़्यादा साउंड लाउडनेस बढ़ जाती है या टोटली घट जाती है. And if you are taking interference in case of light wave, and when such waves they interfere, they superimpose, the result will be, if it is constructive superposition, तो वहाँ ब्राइट पॉइंट बनेगा. दो वेव की जो लाइट वेव है वहाँ लाइट ऐड हो गई, एनर्जी ऐड हो गई, पॉइंट ब्राइट बन गया, एकदम नॉर्मल से ज़्यादा ब्राइट हो गई. और अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है, डिस्ट्रक्टिव मीन्स ये जो वेव्स आई हैं सेम टाइम पर सेम पार्टिकल के पास पहुंची है, लेकिन वो पार्टिकल को डिफरेंट वे से वाइब्रेट कराने की कोशिश कर रही हैं. ओके. और एक कहती है राइट में जाओ, दूसरा कहता है नहीं लेफ्ट में जाओ. तो एक वेव कहती है पार्टिकल तुम राइट में स्टार्ट करो ऐसे चल, दूसरी कहते नहीं लेफ्ट में. तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? तो प्रिंसिपल सुपरेशन लगाएंगे, न्यू वेव बनेगी, डिस्प्लेसमेंट माइनस हो जाएगा. एक इधर हो रहा है, एक इधर हो रहा है. एक कहती है 8 सेंटीमीटर इधर जाओ, तो कहती 6 इधर जाओ, तो पार्टिकल 2 इधर जाएगा. ओके. क्योंकि वेक्टर सम आप निकालते हैं पैराग्राफ लॉ वेक्टर से, तो क्या होता है? रिजल्टेंट इज a प्लस बी इफ थीटा इज 0. रिजल्टेंट इज a माइनस बी इफ थीटा इज 180 डिग्री.
ठीक है ना। और अगर ये दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट मैक्सिमम a1 प्लस a2, मिनिमम क्या हुआ a1 माइनस a2। तो जब ये a1 a2 बराबर होंगे तो a1 माइनस a2 तो जीरो आ जाएगा। जब एम्पलीट्यूड जीरो होगी इंटेंसिटी भी जीरो हो जाएगी। आपको पता है इंटेंसिटी का फार्मूला आपको बताया था, 2 पाई स्केयर n स्केयर a स्केयर रो b। ये है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। अब यहाँ देयर आर 2 वेव्स, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? इसकी इंटेंसिटी I1 प्रोपोर्शनल टू A1 स्केयर, इसकी इंटेंसिटी विल बी I2 प्रोपोर्शनल टू A2 होल स्केयर। And what is the intensity of the resultant wave? That will be proportional scale of the amplitude of the resultant wave. ये इंडिविजुअल वेव है जिन्होंने सुपरइम्पोज किया है, नई वेव बनी है। नई वेव की अपनी एम्पलीट्यूड होगी, इंडिविजुअल वेव की अपनी अपनी एम्पलीट्यूड है, और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होल स्केयर। तो इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव विल बी प्रोपोर्शनल टू A1 स्केयर, intensity of second wave will be proportional to A2 scale, intensity of the resultant wave will be proportional to A scale. Okay? तो ये जो रिजल्टेंट वेव आएगी यहाँ से, अभी मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ, अभी डिटेल में करेंगे। इसका रिजल्ट आएगा y इज इक्वल a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। दिस इज द न्यू वेव, or you can say it is the resultant wave. कहाँ से आया? We will prove it. Resultant wave. A is the amplitude of resultant wave. It will be A1 scale plus A2 scale plus 2 A1 A2 cos phi. Phi is the phase difference. Phase difference between two superimposing wave। और यहाँ सेपरेशन का कौन सा केस है? इंटरफेरेंस। तो हम कहेंगे वेव इंटरफियर कर रही है, सेपरेशन स्पेशल केस इंटरफेरेंस। उसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी, इंटीग्रल वेव ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ओके, देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन न्यू वेव इज फॉर्म। न्यू वेव का ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। जब आप इनको ऐड करोगे, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। ये एम्पलीट्यूड ऑफ द न्यू वेव है, which is related to amplitude of individual wave also and phase difference also. Okay, ये हम प्रूव करेंगे। अच्छा, then what is theta? तो phi was the phase difference between the two waves which superimpose। लेकिन यहाँ ये इसका फेज जो है, रिजल्टेंट वेव का फेज ये है ओमेगा t माइनस kx प्लस थीटा। इट विल मीन कि जो नई वेव बनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, तो जिन दो वेव ने इंटरफियर किया था उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। न्यू वेव हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंडिविजुअल वेव। देन वेवलेंथ ऑफ द न्यू वेव सेम एज दैट द वेवलेंथ ऑफ द इंटरफियरिंग वेव, बट फेज ऑफ द न्यू वेव इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल वेव्स। Individual wave they were also having phase difference, and now new wave is found, phase is different, omega t minus kx plus theta. What is theta? So tan theta is equal to a2 sin phi divided by a1 plus a2 cos phi. Amplitude of the new wave, phase of the new wave, tan theta. Looking at these two equation, आपको जरूर किसी लॉ की याद आ रही होगी। ऐसा रिजल्ट आपको कहाँ मिलता है? जब आप दो वेक्टर को ऐड करते हैं by making use of parallelogram law method। ठीक है ना, याद करो पैरेललोग्राम वेक्टर में आप दो वेक्टर ऐड करते थे, ये वेक्टर ए होता था, ये वेक्टर बी होता था, बीच में एंगल थीटा होता था। पैरेललोग्राम लॉ से उसका रिजल्टेंट निकाला जाता था, ये आर होता था। आर वाज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ये आता था। और tan बीटा
theta was the angle which resultant makes with the direction of A vector. याद करो, ये tan बीटा ऐसे ही आता था, B sin theta over A plus B cos theta. ओके, तो ये रिजल्टेंट आपको दिखाया मैंने कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने कहा कि नई वेव बनेगी और उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम के बराबर होगा। तो हमने दो वेव ऐड करी, हमने बोला ये रिजल्टेंट वेव आएगी, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा और ये थीटा, ये जो फेज है ये बताएगा। लेकिन ये जो इक्वेशन है इनसे मैच करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो दो वेव जिन्होंने इंटरफियर किया है उनकी जो ये एम्पलीट्यूड्स हैं आप उनको वेक्टर मान लो। इंस्टेड ऑफ ए एंड बी आप इधर ले लो A1 और इधर ले लो A2, उनको वेक्टर मान लो। और जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स विच इंटरफियर, इसको आप एंगल बिटवीन द A1 A2 मान लो। आप पैरेललोग्राम बनाओ एंड जब रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी A and this angle will be instead of theta it will be, instead of beta it will be theta. पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर में A और B के बीच में एंगल थीटा लेते थे, ये बीटा होता था, फिर रिजल्टेंट बनाता था A के साथ। और हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं सुपरपोजिशन के इंटरफेरेंस के केस में जब आइडेंटिकल वेव्स लिया ऐसे आ रहे हैं। और लुकिंग एट दिस हमें ऐसा सोचना चाहिए कि यार ये रिजल्ट तो मैच करते ही इनसे। जैसे ये दो वेक्टर थे A और B, उनका रिजल्टेंट निकाला गया, उनके A और B के बीच में एंगल थीटा था। यहाँ आप A1 और A2 को अगर आप वेक्टर मान लें, एम्पलीट्यूड ऑफ द टू इंटरफियरिंग वेव को वेक्टर मान लें, और जो फेज डिफरेंस बिटवीन देम है उनको एंगल बिटवीन द वेक्टर मान लें, और फिर पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर से रिजल्टेंट निकालें, तो यही आएंगे। पॉइंट यस सर। मैचिंग कर रहे हैं ना, तो क्यों मैच किए, कैसे मैच किए, क्यों मैच किए, है नहीं? हमने देखा कि यार ये A और B दो वेक्टर होते थे, उनका रिजल्ट निकालना, पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे, ये रिजल्ट आते थे। अब हमारे पास ये दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, ये इनका वेक्टर सम निकालना है। ओके, रिजल्ट ये आ रहा है, इसको देख के ऐसा लगता है कि आप इनको वेक्टर मान लो और ये एंगल बिटवीन A1 A2 मानो, पैरेललोग्राम लॉ लगाओ और रिजल्ट ये आ जाएंगे। हालांकि इसका डिटेल है, आप पूरा बताएंगे कैसे आया, एनालिटिकली बताएंगे, लेकिन अभी इसको सम अप किया कि भी यार ऐसे भी रिजल्ट आ सकता है। ओके, उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, अब कल हम इसी को डिटेल में लेंगे। ओके, और उसके बाद जो सेकंड जो सुपरपोजिशन का केस है जिसको स्टैंडिंग वेव बोला है, उसको भी डिटेल में लेंगे। अभी तो सिर्फ सरफेस पे बताया कि ये क्या होता है। तीसरा था बेड्स फॉर्मेशन।